Okay, so our today's topic is CSS, right? CSS, ठीक है। तो ना बच्चों, एक चीज है यहां पर कि CSS होता क्या है और किस लिए इसको हम यूज करते हैं, ये बेसिकली हमें समझना, राइट? नाउ वन थिंग इज हियर कि हमारे पास एक सिंपल HTML पेज है और मैं उसको एक बार रन कर आके दिखाता हूं आपको। लेट सपोज आई हैव ए सिंपल HTML पेज लाइक आई हैव हेडिंग we have, let's suppose we have a paragraph, ठीक है, and I'm running this, so you can see some heading is there, some paragraph is there. Okay, one more thing is there, like I want to apply some form is there, right? So I'm writing form, or inside form I have name, input box, name, input text, password, input password, ठीक है, password, okay, password, and I have one more input button is submit. Here I am writing one heading H2 register yourself, okay. So if I am talking about this page, तो ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। Now what the CSS do? CSS क्या करती है? It provide the styling to the page. क्या देता है बच्चों CSS हमें? स्टाइल देता है हमारे वेब पेज को, ठीक है। अब एक सिंपल सा प्लेन पेज है, मुझे चाहिए कि सर आई वांट टू कलर दिस, सर आई वांट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, सर आई वांट टू क्रिएट सम बॉर्डर अराउंड दिस फॉर्म। तो हम ये सारे काम किससे कर सकते हैं बच्चों? CSS से कर सकते हैं। हालांकि HTML से भी कुछ बेसिक काम किए जा सकते हैं, बट HTML के अंदर बहुत ही लिमिटेशंस हैं। अगर हम किसी भी वेब पेज को कोई स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो HTML हैव वेरी लिमिटेशंस, राइट? दैट्स व्हाई a new language is introduced that is called CSS, means cascading style sheet. Okay, now here I am giving you some demo. Let me open CSS. A good website is there. You can use W3 Schools CSS. Go to the CSS and here is the some introduction, right? Now listen one thing. We have this simple HTML page. ठीक है, ये HTML पेज दिख रहा है आप लोगों को? क्या होगा ये? What is this tag? Heading. This is some paragraph. Maybe there are some list. Some list. Again we have some heading. Here we have paragraph. Okay, again we have heading, some paragraphs, some heading, some paragraph, something like that. ठीक है, this is a plain HTML page without using any CSS, without using any style, right? Now let's suppose the same content बच्चों, if I apply some style, you can see how page is completely changed. This is content is same, कंटेंट अभी भी वही है, लेकिन मैंने एक स्टाइल अप्लाई की, ठीक है, पूरा पेज हमारा एकदम चेंज हो गया, लुक एकदम चेंज हो गया। some other style is there, some different style is there, and there is no style. तो कोई भी वेबसाइट अगर हम बच्चों डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है इज व्हाट HTML. व्हाट इज रिक्वायर्ड? HTML, ठीक है। केवल HTML से वेबसाइट डिजाइन हो जाएगी, दैट्स नॉट अ बिग इशू। केवल अगर हम HTML से कोई वेबसाइट डिजाइन करें बच्चों तो डेफिनेटली कोई भी वेबसाइट हम डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी वेबसाइट को कोई भी स्टाइलिंग देना चाहते हैं तो विदाउट यूजिंग CSS दिस इज नॉट पॉसिबल।
ठीक है, देखो मैं आपको कोई भी एक वेब पेज दिखाता हूं। जैसे अगर हम इसी वेब पेज की बात करें तो बच्चों राइट क्लिक करके यहां पर एक ऑप्शन आता है व्यू सोर्स, यू नो, तो हम अपने वेब पेज का कोड चेक कर सकते हैं। यू कैन सी विच लैंग्वेज इज देयर, HTML, ठीक है। लेट मी ओपन facebook.com, Facebook login, just wait, ठीक है। Some Facebook page is there and I want to check the source of this page also. Which language is there? HTML. Sir, I want to open, sir, Google page. So if I check the web page, which language is there? HTML. Okay, so without HTML any page cannot be designed, but the styling like color combination, this search box, ये blue color आ रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा different color आ रहा है, जैसे हम इसके ऊपर ये लेके जाते हैं हमारा ये अंडरलाइन आ रहा है, वैसे अंडरलाइन नहीं आ रहा। देखो ये लिंक है हमारा, लेकिन जैसे हम इसके ऊपर लेके जाते हैं तभी अंडरलाइन आ रहा है, अदरवाइज अंडरलाइन नहीं आ रहा है। सो these things can be done by help of CSS only, ठीक है। It is something like if we are talking about a general life example, like a house, so house, just हमने एक हाउस कंस्ट्रक्ट किया, तो आप देखते हैं बच्चों कि वहां पर आपका बाय हेल्प ऑफ बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट है, आयरन रॉड्स है, इन सब से हमारा एक हाउस, ब्रिक्स से हमारा एक हाउस बन गया। लेकिन अभी हमने उसको स्टाइलिंग देना है। स्टाइलिंग कैसे देते हैं बच्चों? उसमें पेंट करके कि भाई यहां पर ये पेंट होना चाहिए, ये वॉल ऐसी होनी चाहिए, यहां पर ऐसा कुछ होना चाहिए, डिजाइनिंग होना चाहिए। तो हम डिजाइनिंग किससे कर रहे हैं उसके अंदर? CSS से, राइट। एंड फाइनली एक और टेक्नोलॉजी है जो बहुत ज्यादा यूज होती है, हालांकि उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नहीं बच्चों, बिकॉज दिस इज नॉट योर सिलेबस पार्ट। जावास्क्रिप्ट। किसी भी वेबसाइट में बच्चों जितनी भी फंक्शनलिटी का पार्ट होता है वो किससे होता है? हमारा जावास्क्रिप्ट से होता है। कुछ बेसिक फंक्शनलिटी HTML में प्रोवाइड कराता है, वो हम साइड बाय साइड सीखेंगे ड्यूरिंग दिस CSS लेक्चर। बट द एक्सट्रीम जितनी भी हमें कंटेंट मिलता है, जो हमें डायनामिक कंटेंट मिलता है, डायनामिक का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि अगर हम बात करें एक फेसबुक पेज की, लेट सपोज अगेन, तो बच्चों यहां पर जो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे फेसबुक दिख रहा है, ठीक है, रीसेंट लॉगिन्स, ये सब कुछ दिख रहा है। ये आप ओपन करो, मैं ओपन करूं, सबके लिए कॉमन है। एग्री और नॉट? राइट। यानी कि जब भी आप इस पेज को ओपन करोगे facebook.com को, सबको ये कॉमन ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपनी आईडी लॉगिन करता हूं तो डेफिनेटली मेरे पेज पे कुछ डिफरेंट कंटेंट होगा, आपके पेज पे कुछ डिफरेंट कंटेंट होगा। एग्री और नॉट? राइट। लेट सपोज आई ओपन माई गूगल, राइट, एंड आई एम ओपनिंग माई Gmail, and you can see, just wait, okay, so this is my Gmail account, right? In that case this is my email ID and my Gmail account. लेकिन if you log in your Gmail account, content will be changed or not? Yes. तो content depending on the ID, content वहां पे क्या आ रहा है बच्चों? डिफरेंट कंटेंट वहां पे आ रहा है। ये हमारा कहलाया जाता है डायनामिक पेज। कैसा पेज कहलाया जाता है बच्चों? डायनामिक पेज, ठीक है। जैसे व्हाट इज CSS? फिक्स है, आप ओपन करो, मैं ओपन करूं, सबको सेम ही दिखेगा। लेकिन अगर हम ये देखें, लेट मी शो यू वन थिंग, लाइक HTML, you know, HTML introduction editor, and just wait, I am showing you basic, yeah, try it yourself, ठीक है। तो बच्चों यहां पर देखो, जैसे मैं यहां पे आ रहा है माई फर्स्ट पैराग्राफ एंड आई एम चेंजिंग सम कंटेंट, मैंने यहां पे सिर्फ फर्स्ट लिख दिया, आई रन दिस, यू कैन सी कंटेंट इज चेंज्ड, गॉट इट, क्लियर। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द डायनामिक कंटेंट, जहां पर कंटेंट, जो हमारा कंटेंट है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट या फिर अकॉर्डिंग टू द नीड या एक्शन बोले तो जैसे मैंने रन किया, पेज मेरा कंटेंट चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड द डायनामिक कंटेंट। तो अगर हमें कोई भी वेबसाइट डायनामिक कंटेंट के हिसाब से बनानी है, बच्चों आज के टाइम पे हर जगह डायनामिक कंटेंट है। आप फेसबुक पे कमेंट करते हो, डायनामिक है, एडिट करते हो, चेंज होता है कि नहीं होता है? कि नहीं होता है? तो हर जगह पे डायनामिक कंटेंट है। अब स्टैटिक वेबसाइट बहुत रेयर बनाई जाती है। डेफिनेटली कोई भी वेबसाइट जो होगी जहां पे जो फिक्स पार्ट है कि भाई उसका नाम आ रहा है, जैसे मान लेते हैं अपन हमारी स्कूल की वेबसाइट को ओपन करें, NRPS खुर्जा.com, तो अपनी वेबसाइट की अगर हम बात करें बच्चों, तो जस्ट वेट, या
देखो यहाँ पे ईमेल आईडी आ रही है, फोन नंबर आ रहा है, ये फिक्स पार्ट है, ये लोगो हमेशा सेम रहेगा। लेकिन अगर हम कंटेंट की बात करें कि भाई यहां पर हम ये करने से हमारा कंटेंट चेंज हो जाए, तो वो हमारा कहलाया जाता है क्या, डायनामिक। तो डेफिनेटली ये वेबसाइट कैन हैव डायनामिक कंटेंट एंड फिक्स्ड कंटेंट। तो फिक्स्ड को हम कह रहे हैं स्टैटिक, डायनामिक जो कंटेंट चेंज हो रहा है उसको हम कह रहे हैं क्या, डायनामिक। एंड डायनामिक कंटेंट कैन ओनली बी डन बाय हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। लेट मी शो यू वन वेन डायग्राम। लेट सपोज दिस इज माय HTML, ठीक है, दिस इज माय HTML। सो व्हाट HTML डू, ठीक है, HTML से हमारा पेज डिजाइन हो गया। जैसे बच्चों HTML के साथ हम अगर यहां पे प्लस करेंगे, व्हाट, जस्ट वेट, HTML के साथ अगर हम यहां पे प्लस करें व्हाट, CSS, ठीक है, CSS, तो हमें क्या मिलेगा, CSS हमें क्या दे रहा है, स्टाइल को और क्या कह सकते हैं, डिजाइन, गुड, ठीक है। तो CSS अगर हम ऐड करेंगे तो हमें वेब पेज कैसा मिलेगा, डिजाइन्ड वेब पेज मिलेगा। और अगर हम यहां पे एक और फंक्शनैलिटी ऐड कर दें, कौन, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, डायनामिक कंटेंट, क्या मिलेगा, डायनामिक कंटेंट, और वी कैन से फंक्शनैलिटी, क्या मिलेगा हमें, फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो केवल HTML से वेबसाइट डिजाइन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि बच्चों मैंने अभी एक वेब पेज डिजाइन किया आपके सामने, हो गया, ठीक है। लेकिन वी कैन नॉट गिव द स्टाइलिंग टू द माय वेब पेज, दैट्स व्हाई इस CSS कंसेप्ट इज देयर। क्लियर, कोई डाउट, ओके। नेक्स्ट मूव टू द टॉपिक। देन बच्चों अगर हम CSS अप्लाई करना चाहते हैं अपने वेब पेज पर, ठीक है, अगर हमें CSS अप्लाई करना है, तो CSS बच्चों अप्लाई करने के लिए वी रिक्वायर्ड, ठीक है, वी रिक्वायर्ड 3 वे, ठीक है, वी कैन implement CSS by 3 ways, ठीक है। 3 तरीके से बच्चों हम अपने पेज पर CSS अप्लाई कर सकते हैं। पहला एंड नॉट रिकमेंडेड, पहला ऑप्शन है इनलाइन CSS। विच वन, इनलाइन CSS, रिकमेंडेड नहीं है, लेस रिकमेंडेड है, वेरी लेस रिकमेंडेड, ठीक है। रिकमेंडेड मतलब यूज नहीं किया जाता रियल लाइफ एप्लीकेशंस में, सॉरी रियल एप्लीकेशंस में, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में ये बिल्कुल यूज नहीं किया जाता। दूसरा है बच्चों हमारा पेज लेवल CSS, क्या कहते हैं हम इसको, पेज लेवल CSS। आई विल प्रोवाइड यू दैट ऑल नोट्स, डोंट वरी, जस्ट अंडरस्टैंड, ओके। पेज लेवल CSS, एंड वी कैन से style tag, we can say style tag, okay, style tag, and we can say internal CSS, INTERNAL CSS, internal CSS. So we have a 3 type of CSS. We can implement CSS by 3 way, like inline CSS, page level CSS, जिसको हम पेज लेवल कह सकते हैं, स्टाइल टैग कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, इंटरनल CSS कह सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज वी हैव एक्सटर्नल CSS, हाईली रिकमेंडेड, ठीक है। आई विल टेल यू व्हाई inline CSS नॉट रिकमेंडेड, व्हाई पेज लेवल CSS इज रिकमेंडेड बट नॉट लाइक external CSS. So which one is the highly recommended? External CSS, then less internal CSS, जिसको हम पेज लेवल CSS भी कह सकते हैं, और the last one is the very less recommended is inline CSS, ठीक है। तो बच्चों कैसे अप्लाई करेंगे पहले ये समझते हैं। तो हम एक पहली प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस की, दैट इज कलर प्रॉपर्टी, ठीक है, कलर प्रॉपर्टी। द व्हाट कलर प्रॉपर्टी डिड, कलर प्रॉपर्टी बच्चों प्रोवाइड द कलर टू द टेक्स्ट। जैसे अभी हमें हमारा कुछ टेक्स्ट आ रहा है, लॉरेम इप्सम, some content is there, some paragraph is there, so I want to change the color of any element, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो हमारा पैराग्राफ हो, चाहे वो हमारा लिस्ट हो, कुछ भी। अगर आपने किसी का भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे बच्चों, कलर प्रॉपर्टी। एंड कलर प्रॉपर्टी हमें देखो अभी कहां पे लगाना है, ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं बच्चों, वापस से क्रिएट कर लेंगे। ये H1 के साथ मुझे कलर देना है, ठीक है, मेरा पेज चेंज हो चुका है, केवल H1 यहां पर है, तो कलर मुझे इसके साथ देना है। तो पहला हम लोग स्टाइल यूज कर रहे हैं इनलाइन। तो इनलाइन के लिए हमें एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। व्हाई आई एम सेइंग एट्रीब्यूट, बिकॉज बच्चों आप लोगों को सबको पता है
कि इनसाइड द टैग, दिस इज द टैग नेम, ओके, और वी कैन से एलिमेंट नेम, और आफ्टर सिंगल स्पेस जो भी कुछ हम लिखते हैं वो क्या कहलाया जाता है, या तो एट्रीब्यूट कहलाया जाता है या फिर वैल्यू कहलाई जाती है, ठीक है। वैल्यू के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो स्टाइल हमारा क्या हो गया बच्चों, यहां पर एक एट्रीब्यूट हो गया, और ये केवल एट्रीब्यूट किस लिए यूज होता है, इनलाइन सीएसएस इंप्लीमेंट करने के लिए। नाउ विच कलर आई वांट, तो मैं यूज करूंगा प्रॉपर्टी बच्चों कलर, क्यों, तो स्टाइल नाम का हमारा एट्रीब्यूट है, स्टाइल इज एट्रीब्यूट, ठीक है। आपको एक सीक्वेंस पता होगा, वन इज एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू और डबल कोटेशन मार्क में क्या लिखते थे हम, एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। दिस इज द सिंटेक्स कि भाई आपने एट्रीब्यूट का नाम लिख दिया, इक्वल करके उसके बाद क्या आएगी, एट्रीब्यूट वैल्यू। तो स्टाइल इज व्हाट, एट्रीब्यूट नेम इक्वल डबल कोटेशन मार्क में बच्चों जो भी लिखेंगे दैट्स बिलोंग टू द वैल्यू। किसकी वैल्यू है, स्टाइल एट्रीब्यूट की वैल्यू है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमारे पास क्या है, कलर इज माय प्रॉपर्टी नेम, ओके। सीएसएस में एक छोटा सा सिंटेक्स और है कि सीएसएस में जो कंसेप्ट होता है वो होता है प्रॉपर्टी, PROPERTY, प्रॉपर्टी नेम कॉलन प्रॉप वैल्यू, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा एट्रीब्यूट ATTRIBUTE, एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, ये पढ़ा हमने। लेकिन सीएसएस में क्या है बच्चों, एक तो डबल कोटेशन मार्क का यूज नहीं होता वैल्यू को लिखने के लिए, जबकि HTML में होता है, राइट। और यहां पर जो एट्रीब्यूट का नाम है उसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या है, प्रॉपर्टी। जो एट्रीब्यूट नेम है सेम सिचुएशन है, बट यहां पर बोलते क्या है उसको, प्रॉपर्टी नेम। यहां पर भी वैल्यू बोल रहे हैं, यहां पर वैल्यू बोल रहे हैं। एक छोटा सा डिफरेंस और है कि इक्वल साइन लगता है और यहां पर कॉलन साइन लगता है, ये तो दो बिंदी है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉलन साइन, ठीक है, ये यूज होता है। सो नाउ कलर इज व्हाट, कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सीएसएस। तो मैंने क्या लिखा, प्रॉपर्टी का नेम लिखा। अभी आप बोल रहे हो कि सर ये तो डबल कोटेशन मार्क में आ रहा है, बच्चों डबल कोटेशन मार्क में इसलिए आ रहा है क्योंकि स्टाइल इक्वल टू जो भी वैल्यू लिख रहे हैं, अभी हम HTML का पार्ट ये डिस्कस कर रहे हैं, तो HTML में जो भी वैल्यू लिखी जाती है वो किस फॉर्मेट में होती है, डबल कोटेशन मार्क में। लेकिन देखो मैं सीएसएस जहां पे लिखूंगा उसको डबल कोटेशन मार्क में लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं लिखा कलर रेड एंड सेमीकोलन, दिस इज कंपलसरी। आफ्टर एवरी वैल्यू वी नीड टू अप्लाई द सेमीकोलन। बच्चों एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, ओके। सो बैक टू द टॉपिक, I do बच्चों what, color is the property name, colon, and red is what, value. I save it back to the web page and you can see color has been changed. Okay. Let's suppose so second thing is we have so paragraph we have, okay, or we have some other heading H2 and I am writing some content in it, lorem 5, ठीक है, and ठीक है, कंटेंट आ गया। चलिए सर मुझे इसको भी कलर देना है, तो क्या करेंगे, सेम स्पेस स्टाइल इक्वल टू और अगेन सेम प्रॉपर्टी, क्योंकि टेक्स्ट का कलर ही चेंज करना है, कलर एंड वी कैन प्रोवाइड सम अदर कलर और सेम कलर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो कलर हैज बीन चेंज, ब्लू, क्लियर है सर। आई वांट टू गिव द कलर टू द पैराग्राफ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लॉरेम, ठीक है, एंड 50, ठीक है, सम कंटेंट इज देयर एंड अगेन आई एम राइटिंग स्टाइल इक्वल टू color COLOR, remember the spelling color, and I want to give some aqua, ठीक है, and I save and my color has been changed, ठीक है। तो किसी का भी कंटेंट का कलर चेंज आपने करना है तो सिर्फ क्या यूज करेंगे बच्चों, हम कलर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमारा काम हो जाए, ठीक है। नाउ वन थिंग इज हियर, लेट्स सपोज हियर आई हैव वन मोर हेडिंग, one more same heading we have, just wait, ठीक है, मल्टीपल हेडिंग आई हैव, H1 I have many times. Let's suppose here I have some paragraph, and after H1 some paragraph there, and after this paragraph is there, and one more paragraph after this, and one heading is there, ठीक है। So let me show you this. So this is my web page, right? Now what happened, sir, I want to give the color of this paragraph is some yellow, ठीक है, happily possible we can do, no problem, just like yellow, ठीक है सर, हो गया सर। next heading I want to give the color is some blue, happily possible we can do some blue color is there.
सर नेक्स्ट पैराग्राफ आई वॉन्ट टू गिव कलर सम अगेन रेड, ठीक है सर, पॉसिबल है रेड हो गया। सर नेक्स्ट हेडिंग आई वॉन्ट सम कलर इज ग्रीन, ठीक है, पॉसिबल ग्रीन हो जाएगा। नाउ व्हाट हैपन बच्चों, इन माय वेब पेज 100 headings are there. How many headings? 100. Then how many time I define this code? 100 times. जैसे अभी यहां पे we have just wait, let me clear the content, just wait. In my same page, how many headings I have right now? 4 headings are there, ठीक है, and I want to change the color of every heading. In that case, how many time I need to write this code? 4 times. 4 times, ठीक है। Let's suppose all H1 are there. सारी heading H1 है, but how many times I need to define this code? 3 times, right? Suppose I want to give sir same color, ठीक है, every heading I want to give the same color, happily possible, but every time I need to define the code again and again, यानी कि with the tag. अगर यहाँ पे 100 हेडिंग होती तो कितनी बार डिफाइन करना पड़ता? 100 बार। 200 हेडिंग्स होती तो 200 टाइम्स। तो क्या हो रहा है, कोड क्या हो रहा है बच्चों, रीयूज नहीं हो रहा, कोड बार बार सेम कोड को हमें रिपीट करना पड़ रहा है, ठीक है, एंड दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। व्हाट शुड बी देयर in the inline case, inline CSS, we have to define the style. We are defining the style of every element inside the element. That's why code is repeated unnecessarily. बार बार कोड रिपीट होगा, बार बार कोड रिपीट होगा, so that is the reason inline CSS is not used. Then what is the recommendation, sir? Sir, instead of inline, you can use internal CSS. What CSS you can use? Internal. Then how we can use the internal CSS बच्चों? Inside the head tag. Inside the head tag हमें एक टैग का नाम यूज करना है, क्या? स्टाइल। अभी देखो यहां पर स्टाइल क्या था? स्टाइल क्या था? एट्रीब्यूट। यहां पर स्टाइल क्या है? टैग। तो इंटरनल में देखो मैंने यहां पे आपको लिखा भी है, इंटरनल में हम क्या यूज करते हैं? स्टाइल टैग यूज करते हैं, या फिर इसको हम पेज लेवल सीएसएस कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे, और इंटरनल सीएसएस तो कहते ही हैं। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे बच्चों स्टाइल। नाउ ए सिंगल लाइन वी कैन चेंज द एवरी कलर, ठीक है। लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट, ठीक है, जस्ट वेट, या एंड वन few more I am creating here, ठीक है, few more headings are and all are the heading tags, H1 tags, ठीक है। So what I need to do, what is the tag name? H1. So we write the tag name, जिसको हम कहते हैं बच्चों सेलेक्टर। क्या कहते हैं? सेलेक्टर। यानी कि किस कंटेंट के साथ, किस एलिमेंट के साथ आपने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेलेक्टर, और इस कंसेप्ट को हम कहते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। 3 तरीके से हम सेलेक्टर को यूज करते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर, ठीक है। लेटर भी डिस्कस ऑन इट, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट मतलब टैग, तो हमने लिखा टैग का नाम करली ब्रेसेस, ठीक है। अब बच्चों हमने जो करली ब्रेसेस लगाए, तो ये H1 का करली ब्रेसेस है, यहां से स्टार्ट होगा और कहां पे खत्म हो जाएगा? इधर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हम जो भी कुछ डिफाइन करेंगे, जो भी कुछ स्टाइलिंग हम लगाएंगे, दैट्स ऑल स्टाइलिंग बिलोंग टू H1 ओनली। सो वी आर राइटिंग कलर colon red semicolon, and you can see every heading color has been changed. How many time I need to write this line? One time. Code is repeated or not? No code is repeated, and here I have to write this statements. How many lines are there? Maybe 3 4 5 6 7 something, 7 8 lines. So 7 or 8 times I need to write this code again and again. Agree? ठीक है। So what we are doing, we are reducing the code. Next suppose sir we have some paragraph, okay sir, we have multiple paragraphs are there. Let's suppose multiple paragraphs are there, ठीक है sir, I want to give some color to this paragraph, ठीक है, happily possible, go to this style tag. अब बच्चों देखो ये H1 को बिलोंग कर रहा है ये पूरा पार्ट। अब हमें किसके लिए लगाना है? हमें लगाना है बच्चों पैराग्राफ के लिए। तो हम सेलेक्टर लिखेंगे, मतलब एलिमेंट का नाम लिखेंगे विदाउट यूजिंग, देखो यहां पर टैग का नेम कैसे लिखा जाता है? टैग का नेम लिखा जाता है ऐसे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, लेकिन हम यहां पे कैसे लिख रहे हैं? विदाउट एंगुलर ब्रैकेट। ओके सर, आई वांट टू कलर कॉलन, आई एम गिविंग ब्लू।
So what happen here? Just save it and refresh it. You can see आपके सभी पैराग्राफ में कलर क्या हो गया? चेंज हो। ठीक है, तो अभी क्लियर है ये पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं one more important point. I am creating one more file here in this same folder. I am creating one more file here and I am creating demo css.html. ठीक है, one more file. एंड इसका नाम मैंने दे दिया बच्चों डेमो, डेमो CS. ठीक है, here I am also using same content. ये जो जितना भी मेरा कंटेंट है मैं सेम कंटेंट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. जस्ट वेट. ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट टू माई demo.css.html. ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया. चलिए इस पेज को रन करा सकते हैं. ठीक है, बिल्कुल करा सकते हैं. कैसे कराएंगे समझ लेते हैं जल्दी से. तो यहां पर हम लिखते हैं डेमो css.html. ठीक है, रन किया. अभी देखो कुछ रह गया या. ठीक है, अभी देखो यहां पे वापस आ जाते हैं. तो ये मेरा कंटेंट आ रहा है, जबकि ये वाले पेज पर कंटेंट मेरा कलर्ड आ रहा है. इस वाले पेज पर कैसा आ रहा है? इस वाले पेज पर कैसे आ रहा है? अलग आ रहा है. क्यों आ रहा है सर? वी हैव सम डिफरेंट पेज. हमने जो स्टाइलिंग सर लगाई है वो लगाई है सर इस वाले पेज में. डॉक्यूमेंट जो नाम का पेज है, यानी कि index.html वाला जो पेज है सर, इसमें हमने स्टाइलिंग लगाई है. दिस स्टाइलिंग नॉट एप्लीकेबल टू अदर पेज. तो हमने क्या कहा? पेज लेवल स्टाइल है. कैसा लेवल स्टाइल है? पेज लेवल. ये अगर जिस पेज पर हमने लगा दिया उसी पेज पर काम करेगा, दूसरे पेज पर काम नहीं करेगा. नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इट? द सॉल्यूशन इज एक्सटर्नल CSS. एक्सटर्नल CSS में बच्चों क्या होता है? वी नीड टू क्रिएट ए फाइल. जैसे हमने मान लेते हैं एक फाइल क्रिएट की style.css. क्या CSS की एक अलग से फाइल बना दी. क्या नाम है उसका? नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सटेंशन .css होगा. जैसे HTML का एक्सटेंशन क्या होता है? .html. फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, बट एक्सटेंशन ऑलवेज .html. ऐसे ही यहां पर बच्चों क्या होगा? style.css. यानी कि फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है. मैंने ले लिया, स्टाइल ले लिया, आप कुछ और नाम ले सकते हो, लेकिन एक्सटेंशन विल बी .css. ठीक है, कि सर जो भी आपने फॉर्मेटिंग करनी है, जस्ट अप्लाई ऑल द फॉर्मेटिंग और ऑल द स्टाइल इन दिस फाइल. ठीक है, कैसे करेंगे? सिंपली देखो समझते हैं. तो यहां पर हम सेम फोल्डर में एक और फाइल क्रिएट कर रहे हैं और उसका नाम रख रहे हैं हम style.css. क्या रख रहे हैं बच्चों? style.css. जस्ट वेट एंड माई फाइल इज क्रिएटेड. ये आगे मेरी. ठीक है, इसको मैं पीछे कर देता हूं. ये मेरी फाइल आ गई. ये मेरी फाइल आ गई. अब जो ये जो फॉर्मेटिंग मैंने यहां पे की है, ठीक है, ये सारी स्टाइल विदाउट यूजिंग एनी टैग हमें कहां पे लिखनी है बच्चों? इस पेज पर लिखनी है. टैग की भी जरूरत नहीं है. ये जो स्टाइल टैग है इसकी भी जरूरत नहीं. सिर्फ आपने सेलेक्टर का नाम लिखना है, यानी कि एलिमेंट का नाम लिखना है और उसके अंदर फॉर्मेटिंग करनी है. तो हमने बच्चों यहां पे क्या किया है? हमारे पेज पर सर हेडिंग है, तो हेडिंग के लिए हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी. पैराग्राफ है, इसके लिए कर दी. ठीक है, लेट मी चेंज सम कलर. तो मैंने हेडिंग का कलर ब्लू कर देते हैं और पैराग्राफ का कलर बच्चों ब्राउन कर देते हैं. ठीक है, तो कुछ चेंजेस हो जाएगा. अब सर यहां पर इस वाली फाइल पर हमें फॉर्मेटिंग देनी है. देखो अभी क्या होगा सर, ना तो इस वाली फाइल पे कोई फॉर्मेटिंग आ रही है, ना इस फाइल पे कोई फॉर्मेटिंग आ रही है. कैसे करेंगे? जो बच्चों हमने अलग से फाइल बनाई है इसको यहां पर इंक्लूड कराएंगे. कैसे इंक्लूड करेंगे? इनसाइड द हेड टैग वी नीड टू राइट लिंक टैग. कौन सा टैग यूज करना है बच्चों में? लिंक. अब इसके अंदर केवल 3 चीजें. पहली चीज, टैग का नाम फिक्स है, लिंक लिखना है. दूसरा आरईएल बोले तो रिलेशन हमें क्या देना है बच्चों? स्टाइल शीट हमेशा सेम रहेगा, बिल्कुल कॉमन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट है बच्चों href, हाइपर रेफरेंस. इसका यूज आपको पता है कि हम किसी भी पेज को कनेक्ट करने के लिए इसका काम करते हैं. तो बस यहां पे हमें क्या लिखना है? अपने पेज का नाम लिखना है style.css. ठीक है, तो देखो मैंने यहां पे जैसे इसको इंप्लीमेंट करूंगा, माय कोड हैज बीन चेंज्ड. हो गया सिंपल. सर मुझे इस पेज पे भी सेम फॉर्मेटिंग करनी है, बिकॉज टैग आर सेम. हैप्पीली पॉसिबल. जस्ट कॉपी दिस फाइल लाइन एंड पेस्ट इट हियर. जस्ट खत्म. इस पेज की भी डिजाइनिंग. ठीक है, अब वी हैव 100 पेजेस. देन हाउ मेनी लाइन्स आई रिक्वायर्ड टू रिपीट? ओनली ए सिंगल लाइन. ठीक है सर, आई वॉन्ट टू चेंज द सेटिंग. सर आई वॉन्ट टू चेंज द स्टाइलिंग इन एवरी पेज. I want to change the styling in every page. Sir, happily possible.
I want to give some color aqua color I'm giving. So on every page color has been changed by a single go. अब जो रियल लाइफ में या रियल टाइम्स में जो वेबसाइट बनती है उसमें कोई एक दो पेज नहीं होते, तो 50, 10, 100, 1000 पेज होते हैं। अगर डेवलपर एक एक पेज पे जाके चेंज करेगा कोई भी चेंजेस को, सो इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ टाइम। तो इसलिए द हाईली रिकमेंडेड सीएसएस इज व्हाट, एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यू कैन यूज आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ, बट नॉट रिकमेंडेड इनलाइन, ठीक है। या तो इनलाइन यूज कर, इंटरनल यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं। तो बट आई रिकमेंडेड what you should use internal only, ठीक है। दिस इज माई रिकमेंडेशन, राइट। बिकॉज इसको अलग से हमें एक और फाइल बनाने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट वी कैन डू व्हाट, वी कैन क्रिएट ए स्टाइल टैग हेयर, जस्ट वेट, स्टाइल, ठीक है। और वी कैन डिफाइन ऑल द प्रॉपर्टी, जस्ट आई कॉपी दिस, here I am pasting, ठीक है। so my work has been done, ठीक है। but clear तो है कि how we can do external CSS, what we need to do, we need to create a file with CSS and apply all the formatting, all the styling inside, clear है, ओके। चलिए, तो अभी हमें इंटरनली यूज करना है, और इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, आप ये जो मेरा एक्स्ट्रा कंटेंट है इसको मैं हटा रहा हूं, जस्ट वेट। Here we have HTML learning, या तो मैं स्टाइल हटा रहा हूं, एंड ये जो डेमो CSS हमने बनाया था इसको भी मैं हटा रहा हूं, ठीक है। चलिए, ओनली दिस कंसेप्ट वी हैव, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट, ठीक है। तो अब हमारे पास केवल दो फाइल है, एक फाइल जिसमें हम थोड़ा कंटेंट लिख रहे हैं, और दूसरा हमारा ये फाइल, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने कलर लगाना सीख लिया बच्चों की कैसे हमें कलर लगाना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आई एम रिड्यूसिंग दिस, जस्ट वेट, या ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भी है, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है सर, आई वांट टू अप्लाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर I want to apply. The property name is background color. Yeah. How we can apply the background color? तो बच्चों अगर हम HTML के हिसाब से देखें तो केवल एक ऑप्शन होता था भैया BG कलर, और यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पर दे देते हम क्या, कलर का नाम। बस बॉडी के बैकग्राउंड में कलर लगा सकते थे, बाकी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और एक टेबल में लगा सकते थे क्योंकि उसी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन बाय हेल्प ऑफ CSS बच्चों, यू कैन अप्लाई द बैकग्राउंड कलर इन बैकग्राउंड द एवरी एलिमेंट। हेडिंग के पीछे बैकग्राउंड करना है, बिल्कुल सही है। कैसे करेंगे बच्चों, ये हेडिंग को बिलोंग करेगा ना, ये वाला पार्ट, एग्री और नॉट, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड लिख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी लिख सकते हैं, बोथ आर एप्लीकेबल। लेट मी अप्लाई सर येलो कलर, ठीक है। तो हेडिंग के बैकग्राउंड में देखो कलर, ये पेज नहीं है हमारा, या जस्ट वेट, हेडिंग नहीं आ रहा, just wait, I need to run it again, just wait, yeah, you can see font color भी आ रहा है और heading का background color भी आ रहा है। sir I want to apply a background color behind the paragraph, happily possible। so paragraph के नीचे आपने यहाँ पे क्या करना है, कलर का नाम लिख देना है, ठीक है। एंड कलर का नाम लिख देते हैं बच्चों, क्या लिखें बताओ, लाइट ग्रीन लिख देते हैं, क्यान लिख देते हैं, चलो लाइट क्यान। सेव किया, बैक टू द पेज, और देखो यहां पर भी एक बैकग्राउंड में कलर आ गया, क्लियर है। तो हम बैकग्राउंड में कलर, किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड में कलर लगा सकते हैं बाय हेल्प ऑफ बैकग्राउंड, ठीक है। नाउ ओके, एक जगह मैंने बैकग्राउंड यूज किया, एक जगह मैं कलर यूज कर लेता हूं, बोथ इज पॉसिबल। या तो आप केवल बैकग्राउंड लिखो या बैकग्राउंड कलर लिखो, बोथ आर हैप्पीली पॉसिबल, वी कैन, इट विल वर्क एग्जैक्टली सेम, कोई डाउट नहीं। सर आई वांट टू अप्लाई द बैकग्राउंड कलर ऑन बॉडी, सर ठीक है, यहां पे कर दिया, यहां पे कर दिया, इज इट पॉसिबल टू अप्लाई द बैकग्राउंड कलर ऑन बॉडी और नॉट, हैप्पीली पॉसिबल। तो देखो अभी बच्चों, जैसे H1 एक एलिमेंट है, P एक एलिमेंट है, ऐसे बॉडी भी एक एलिमेंट है। अच्छा, इसका कोई सीक्वेंस भी नहीं है कि सर H1 हमने यहां पर पहले डिफाइन किया है, देयर इज द H1 फर्स्ट, तो यहां पे प्रॉपर्टी भी पहले डिफाइन करनी पड़ेगी, नो, देयर इज नो सीक्वेंस। आप किसी भी सीक्वेंस में डिफाइन कर दो, बट
कंपल्सरी ऑल मस्ट बी इनसाइड द स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग किसके अंदर होना चाहिए बच्चों? हेड टैग के अंदर। ठीक है, बहुत ध्यान रखेंगे। टाइटल पहले लगा दो, टाइटल स्टाइल के बाद लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल वर्क एग्जैक्टली सेम। ठीक है, बट टाइटल भी हेड के अंदर होता है बच्चों, और स्टाइल टैग भी हमारा किसके अंदर होता है? हेड टैग के अंदर होता है। ठीक है, नाउ आई वांट टू अप्लाई सम बैकग्राउंड कलर टू द बॉडी, हैप्पीली पॉसिबल। आई एम डूइंग बॉडी and bg the background color, and I'm giving some which color will be aqua. Okay, fine. Back to the page and the background color is aqua. ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? तो टू प्रॉपर्टीज आर क्लियर। ठीक है, ऑन एवरी एलिमेंट अगर हमें कोई उसका टाइप चेंज करना है, कलर का टाइप चेंज करना है, कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, सॉरी, तो हम यूज करेंगे बच्चों क्या? कलर प्रॉपर्टी। अगर हम उस पर कोई भी बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? बैकग्राउंड या फिर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, बोथ आर सेम। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, व्हेन अगर हम प्रॉपर्टी के छोटे से एक बात करें बच्चों, तो प्रॉपर्टी में अगर हम देखें, एक चीज है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी दो चीजों से मिलकर बनेगी तो उनके बीच में क्या आएगा? डैश आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। बाकी तो केवल 10 प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में है सीएसएस की, आराम से आप याद कर सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे आराम से हो जाएगा। चलिए, तो वापस चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर, नॉट स्टाइल ओनली, बॉर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए नाउ ओके, सो आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी is border, right? So I am clearing the old properties so we can understand very clearly. Okay, so here we have a style. Let me check the web page. All formattings, all styles are clear. ठीक है, so this is my web page. Now one thing is here, what next we have a border. So if we create a border around the element, right, you know, many places you have seen the border की पेज पर एक बॉर्डर लगा हुआ है, हेडिंग पर एक बॉर्डर लगा हुआ है, पैराग्राफ पे कोई बॉर्डर लगा हुआ है। सो वी कैन अप्लाई द बॉर्डर बाय हेल्प ऑफ बॉर्डर प्रॉपर्टी। सो वी हैव h1 फर्स्ट। सो इनसाइड द h1 आई हैव फर्स्ट प्रॉपर्टी बॉर्डर विड्थ, WIDTH विड्थ। ठीक है, बॉर्डर विड्थ, यानी कि बॉर्डर जो आप लगा रहे हैं उसका थिकनेस कितना रखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत कम बच्चों भी बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, 5 पिक्सल हम लोग रख रहे हैं। दूसरा है बच्चों प्रॉपर्टी है बॉर्डर स्टाइल। तो स्टाइल बच्चों ये हमारे पास देखो सारी स्टाइल्स हैं, डैश्ड, डॉटेड, डबल, ग्रोव, हिडन, इनहेरिट, इनिशियल, इनसेट, नन में बॉर्डर नहीं आएगा, आउटसेट, रिज। ठीक है, तो मैं और भी होंगी बेसिकली, हाँ, सॉलिड एंड अनसेट, दीज ऑल आर द बॉर्डर स्टाइल्स। ठीक है, तो मैं इसमें बहुत बेसिक यूज कर रहा हूं, सॉलिड यूज कर रहा हूं कि सॉलिड हमारा स्टाइल आ जाए। एंड तीसरा है बच्चों कलर। ठीक है, कलर, बॉर्डर कलर। ठीक है, और मैं बच्चों लगा रहा हूं बॉर्डर पे कोई कलर, लेट मी शो राइट। ठीक है, नाउ पहले देख लेते हैं इसको, वेब पेज को। तो देखिए बच्चों, हेडिंग के चारों तरफ क्या आ गया? एक बॉर्डर आ गया। चलिए अब छोटे छोटे चेंजेस करते हैं। जैसे पहला चेंज है, ठीक है, जस्ट वेट, पहला चेंज है बच्चों, मैं यहां पे बॉर्डर कर रहा हूं 10 पिक्सल। ठीक है, देखिए बढ़ गया, फिर मैंने किया 20 पिक्सल, यानी कि इसकी थिकनेस बढ़ती चली जाएगी। जितना ज्यादा ये नंबर बच्चों बड़ा होगा उतना ज्यादा थिकनेस हमारे बॉर्डर की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, मैंने लिख दिया बच्चों 1, बहुत थिन बॉर्डर आएगा। मैंने लिख दिया 5, थोड़ा सा बड़ा आएगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज द स्टाइल? लाइक मैंने लिखा पहले सॉलिड, लेट मी राइट सम अदर स्टाइल। आई एम राइटिंग ग्रोव, GROOV, ग्रोव। ठीक है, तो यू कैन सी, देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और अगर हम पिक्सल थोड़ा बढ़ा लें तो तब इजीली ये ग्रोव समझ में आएगा आपको। तो ये अंदर की तरफ ऐसे ग्रोव, ठीक है, अंदर की तरफ ये धसा हुआ है कुछ। ठीक है, स्टाइल है सिंपल। मैंने ले लिया बच्चों, मान लेते हैं डैश्ड। ठीक है, एंड आई मिनिमाइज दिस, तो आप देखिए एक डैश्ड बॉर्डर आपके वेब पेज पर आ जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी स्टाइलिंग यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सर अगर कलर ना लगाएं तो
हैप्पीली पॉसिबल। अगर आप कलर नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक आएगा। सर अगर विथ भी ना लगाएं तो हैप्पीली पॉसिबल डिफॉल्ट विथ आ जाएगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। मे बी ये 2 या 3 होगी। लेकिन अगर बच्चों हमने स्टाइल नहीं लगाया तो बॉर्डर हमारा शो नहीं होगा, ठीक है। इट मींस 2 properties are optional, one is color and one is width. Both properties are optional, but if you want to change the color you can apply border color property. If you want to change the border width you can apply border width pixel 5. Clear है? कोई डाउट? नो? चलिए next we have, sir we have 3 properties, ठीक है। and suppose I want to apply the same border on paragraph also, ठीक है, on the same border paragraph also या same formatting on the paragraph also, so I can do h1 comma p. इसको हम कहते हैं बच्चों मल्टीपल सेलेक्टर। क्या कहते हैं हम इसको? मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्टर। तो बच्चों जैसे देखो मैंने p कॉमा लिखा, कॉमा p लिखा, तो पैराग्राफ पे भी क्या हुआ? सेम आ गया, ठीक है। अब ये देखो जो भी फॉर्मेटिंग मैं इसमें लिखूंगा वो दोनों पर अप्लाई होंगी एक साथ, ठीक है, दोनों पे कलर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको वेब पेज पर कहीं पे आपको सेम फॉर्मेटिंग चाहिए कि भाई H1 है, H2 है, H3 है, तीनों पे सेम फॉर्मेटिंग चाहिए, साइज तीनों का अलग अलग आएगा लेकिन फॉर्मेटिंग हमको सेम चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं? आप मल्टीपल सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं। एच कॉमा लगा लगा के आप कितने भी यहां पर यूज कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं? चलिए ठीक है। नाउ वन थिंग वी है बच्चों, ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर की ना 3 प्रॉपर्टी है, ठीक है। विद स्टाइल, और ये तो कलर खैर हमने बाद में यूज किया, विद स्टाइल एंड बॉर्डर विद, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर, ठीक है। इन तीनों प्रॉपर्टी को हम एक साथ भी यूज कर सकते हैं बिना 3 प्रॉपर्टी डिफाइन किए, ठीक है। कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो बच्चों हमें लिखना है सिर्फ बॉर्डर कॉलन, इसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। सबके साथ नहीं है लेकिन कुछ एलिमेंट के साथ है, तो बॉर्डर के साथ है। तो सबसे पहले हमने क्या डिफाइन किया? बॉर्डर विड्थ, तो हमने लिख दिया बच्चों यहां पर 10 पिक्सल, ठीक है। थोड़ा चेंज करते हैं, 10 पिक्सल। अब दूसरा क्या था? बॉर्डर का स्टाइल, तो स्टाइल हमने मान लेते हैं, हमने लिख दिया बच्चों यहां पर सॉलिड। और तीसरा क्या था? तीसरा था बच्चों कलर, तो मैंने ले लिया यहां पे ब्लू, ठीक है। अब देखो मैं ये हटा रहा हूं तीनों प्रॉपर्टी ऊपर वाली, और आप देखिए सिंपल एक प्रॉपर्टी से ही हमारा बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। तो हमने क्या किया? अब हमें केवल क्या लिखना है यहां पे लिखना है बच्चों बॉर्डर कॉलन, ठीक है। पहली वैल्यू विड्थ, दूसरी वैल्यू स्टाइल, तीसरी वैल्यू कलर, ठीक है। सर अगर ये सीक्वेंस याद ना रहे तो देयर इज ऑल्सो नो प्रॉब्लम, वी कैन चेंज द सीक्वेंस, देयर इज नो बिग इशू। आप सर इसको यहां पे लगा दो, ठीक है, हैप्पीली बॉस। तो बच्चों सीक्वेंस मैटर बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन तीनों चीजें होनी चाहिए। तीनों चीजों में से भी विड्थ हटा सकते हैं, डिफॉल्ट आएगा, ये भी हटा सकते हैं, डिफॉल्ट आ जाएगा, लेकिन स्टाइल नहीं हटा सकते। स्टाइल कंपलसरी है, इसके अलावा दोनों चीजें ऑप्शनल है, लेकिन एवरी वैल्यू मस्ट बी सेपरेटेड बाय सिंगल स्पेस, ठीक है। कम से कम सिंगल स्पेस, एक से ज्यादा आप दे सकते हैं। तो मैं अगेन आई एम अप्लाइंग सम 50 पिक्सल एंड I am giving here it's a solid and color I am giving some blue, ठीक है। तो remember this point, these are the 3 properties, every property must be separated by single space at least, ठीक है। और लास्ट में आएगा सेमीकोलन। तो हम by a single element, by a single property we can apply the border style on around the elements. Is it clear? कोई डाउट? No? Okay sir, is it possible to apply the some border around the paragraph also, some different border? Yes, happily possible. How can we do this? Just wait and copy this, applying here, and I'm changing my color, let's suppose red, and sorry, and the pixel is 5. Oh yeah, pixel is 5 only, ठीक है। So we can check the color has been changed and style, ठीक है। So we can create this thing on any element of the HTML by help of border. Clear है? Yes? Okay. Move to the next property, that is the font, family, style and size. After completing this, we will end to the today's session. ठीक है। And उससे पहले बच्चों मैं align property आपको पहले बता देता हूं। जैसे अभी बच्चों क्या है कि हमारा, मैं ये हटा रहा हूं दोबारा से प्रॉपर्टी को, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर से मैं हटा रहा हूं, फ्रेश एकदम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए
तो ठीक है सर, हेडिंग आ रहा है और ये आ रहा है। तो अभी हेडिंग हमारा किधर आ रहा है बच्चों? लेफ्ट आ रहा है। सर आई वांट दिस हेडिंग सेंटर और आई वांट दिस हेडिंग राइट। तो बच्चों यहां पर क्या है, एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन। अब बच्चों इसकी चार वैल्यू हो सकती हैं, जस्टिफाई लेफ्ट राइट, और जस्टिफाई लेफ्ट राइट, और एक और होगी सेंटर कहीं। ठीक है, कहाँ है? हाँ ये सेंटर। ठीक है, तो पहले मैं कर रहा हूं बच्चों सेंटर। तो आप देखेंगे आपका जो वेब पेज है वो कहाँ गया, जो हेडिंग है वो कहाँ गई, सेंटर में आ गई। ठीक है, चलिए पैराग्राफ में कुछ कंटेंट और बढ़ा रहे हैं हम लोग, और फिर जस्टिफाई भी इजीली समझ में आ जाएगा। जस्ट वेट, सॉरी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ज्यादा से कंटेंट आ गया एंड ठीक है, ये मेरे पास कंटेंट है, ये मेरा वेब पेज है। अभी देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जो एजेस है कैसे आ रहा है, कहीं ज्यादा आ रहा है कहीं कम आ रहा है ना। ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई दोनों साइड से जो कंटेंट आए वो एकदम इक्वल आए, है ना। दोनों साइड से जो एजेस आए कंटेंट की वो कैसी आए, एकदम इक्वल आए, जैसे आपकी बुक में होता है ना। तो कैसे करेंगे, जस्ट गो टू द स्टाइल पैराग्राफ, सॉरी जस्ट वेट, या पैराग्राफ, और यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, टेक्स्ट डैश अलाइन कॉलन जस्टिफाई सेमीकोलन। ठीक है, एंड यू कैन सी, देखिए अभी देखो यहां से साइड में एकदम इक्वल हो गया, इधर भी देखो एकदम इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये किससे हो गया हमारा, जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है बच्चों, लेफ्ट एंड राइट दोनों से एकदम इक्वल कंटेंट को हमारा कर देता है। ठीक है, अगर केवल पैराग्राफ को हम केवल बच्चों लेफ्ट कर देंगे तो ये लेफ्ट अलाइंड हो जाएगा, जैसे आपने एमएस वर्ड में पढ़ा होगा, समथिंग द सेम कंटेंट। ठीक है, तो ये लेफ्ट अलाइन हो गया, देखो यहां से इधर हो गया, राइट करेंगे तो ये राइट अलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये इधर इधर से इससे स्पेस छोड़ दिया, सेंटर करेंगे तो सेंटर अलाइन हो जाएगा, सेंटर से पढ़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और लेकिन जस्टिफाई करेंगे, देखो एक छोटी सी लाइन बची थी, उसने किसमें सेट कर दिया उसको, सेंटर में, क्योंकि सेंटर किया हुआ है। और नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक, नहीं कोई भी एक एलिमेंट एक बार ही होगा। ठीक है, या तो जस्टिफाई होगा या तो सेंटर होगा। ठीक है, लेकिन सेंटर हम जनरली वो करते हैं जिस जैसे हेडिंग है, अब पैराग्राफ को सेंटर करने की कभी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, या पोएम आप लिख रहे हैं तो पैराग्राफ को सेंटर आप कर सकते हैं कि पोएम बीच में आए एकदम। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, न्यू लाइन हमेशा कंटेंट न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पर हम उसको कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वी हैव फॉन्ट, फॉन्ट राइट, जस्ट वेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी है बच्चों फॉन्ट। तो वापस से आ जाते हैं, सिंपल अपना सब कुछ हटा दिया हमने, और ठीक है ये हमारी हेडिंग आ गई, एंड आई हैव सम मल्टीपल हेडिंग्स, लेट्स H2 H3। ठीक है, सब मल्टीपल हेडिंग्स है, 1 2 3। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी फॉन्ट। अब जो फॉन्ट के साथ तीन प्रॉपर्टी हैं, फॉन्ट फैमिली, बेसिकली इनको ऐसे लिखा जाता है, फॉन्ट डैश फैमिली, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। नाउ व्हाट वी है, फर्स्ट वी स्टार्ट विद फॉन्ट साइज। तो बच्चों क्या है, हेडिंग का आपने हमेशा आपको पता है कि हेडिंग का एक फिक्स साइज है, कि सर H1 का ये है, H2 का ये है, H3 का ये है, H4 का ये है, फिक्स साइज है। बट बच्चों बाय हेल्प ऑफ फॉन्ट साइज लाइक H1 फॉन्ट साइज, FONT साइज, वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द फॉन्ट। ठीक है, तो ये साइज बच्चों वैसे तो एक नॉर्मल होता है, एक लार्ज होता है, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बट आप एक कंसेप्ट याद रखो, पिक्सल्स में। किस कंसेप्ट में, पिक्सल्स में। बच्चों बॉडी के ऊपर जो डिफॉल्ट कंटेंट आता है ना, हेडिंग को छोड़ दें तो डिफॉल्ट जो कंटेंट आता है उसका साइज होता है 16 पिक्सल्स। कितना होता है, जैसे जैसे मैं अगर यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाऊं या फिर सिर्फ एक मैं यहाँ पे हेलो लिख दूं, तो इसका जो हेलो का साइज है वो कितना है बच्चों, 16 पिक्सल, ये डिफॉल्ट है। ठीक है, देखें आता है कि नहीं, चलो मैं दिखाता हूं कैसे चेक करेंगे। राइट क्लिक ऑन द पेज, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट में जाने के बाद कंप्यूटेड, एंड आई वांट टू क्लिक ऑन हेलो, नहीं यहां पर हेलो पे क्लिक करते हैं, कहां गया, इनसाइड द बॉडी हेलो, और देखो यहां पर आएगा फॉन्ट 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 फॉन्ट
ये ज्यादा समझ में तो नहीं आएगा बच्चों, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टाइल में होगा फिर शायद, स्टाइल लेआउट और जीबी ब्लॉक, ये रहा। फॉन्ट साइज देखो क्या आ रहा है बाय डिफॉल्ट, 16 पिक्सल। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, थोड़ा ब्लर होगा पीछे की तरफ, बट देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आप वीडियो में देखोगे तो साफ दिखेगा क्या आ रहा है, 16 पिक्सल। तो डिफॉल्ट बॉडी का जो कंटेंट होता है उसका साइज कितना होता है बच्चों, 16 पिक्सल। ठीक है, अब उसी हिसाब से आप डिसाइड कर लो कि भाई आपने थोड़ा बड़ा करना है तो क्या करेंगे। हेडिंग की बात नहीं कर रहे, हेडिंग का एक डिफॉल्ट साइज होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनरल साइज क्या होता है बॉडी के ऊपर कंटेंट का, 16 पिक्सल। तो मैंने क्या किया, इसको कर दिया भाई हेडिंग 1 को 100 पिक्सल, बल्कि हेडिंग 1 को नहीं 3 को करता हूं, बल्कि H1 से छोटा होता है H3 होता है कि नहीं, लेकिन देखिए जैसे मैंने इसको 100 पिक्सल किया तो H1 से भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कंटेंट थोड़ा ज्यादा है इसलिए एक बारी में नहीं आ रहा है, कंटेंट में थोड़ा कम कर देता हूं, ये इतना काफी है। ठीक है, तो आप देखिए अभी ये H1 ये है, लेकिन हमने क्या किया, इसके साइज को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो कितनी भी साइज को आप, जितना बड़ा ये नंबर होगा, जितना पिक्सल्स आप बढ़ाते जाओगे उतना हमारा कंटेंट का साइज कैसा हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हो। तो फॉन्ट साइज क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, इसको मैं एक नॉर्मल कर देता हूं, मैं इसको कर लेता हूं बाय डिफॉल्ट कितना होता है 16, 62, 64, 64 पिक्सल का। ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है, इतना आराम से दिखेगा। H3, अब H3 पे बच्चों मुझे क्या करना है, फॉन्ट फैमिली स्टाइल। फॉन्ट क्या अप्लाई करना है, फैमिली। फैमिली का मतलब होता है फॉन्ट का स्टाइल कौन सा है। ठीक है, मैंने लिखा फॉन्ट डैश फैमिली, फैमिली। ठीक है, तो फैमिली का स्टाइल, तो अब यहाँ पे बहुत सारे फैमिली आ रहे हैं, कोरियर न्यू, कोरियो मोनोस्पेक्स, ठीक है, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन आप जो एडिटर आप यूज करते हो, यानी कि आप लोग नोटपैड यूज करते हो या तो नोटपैड प्लस प्लस यूज करते हो बच्चों, उसमें ये सारे नहीं मिलेंगे, तो उसको आप देखने के लिए क्या कर सकते हो, विंडो नहीं, आप 2-3 तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप जाओ CSS फॉन्ट स्टैक। ठीक है, क्या काम है, क्या काम है, 5 मिनट बाद। ठीक है, CSS फॉन्ट स्टैक, राइट। तो बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पे इस पे क्लिक किया, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट के टाइप हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे फॉन्ट आपके सिस्टम को सपोर्ट करें, क्योंकि बच्चों एक देखो ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कंट्रोल पैनल, ठीक है, कंट्रोल पैनल में एक ऑप्शन होता है फॉन्ट्स, वेयर इज माय फॉन्ट्स या फॉन्ट्स। ठीक है, इनसाइड द फॉन्ट, ये मेरे सिस्टम के सारे फॉन्ट्स हैं, ये लगभग हैं कितने, ये हैं लगभग काउंट नहीं दिखा रहा, कोई बात नहीं दिखा रहा तो ठीक है, मतलब जितने भी है, मतलब नहीं दिखा रहा था, 409 ये है। लेकिन ये 409 जो फॉन्ट है यही मेरे पीसी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पीसी में पहले से इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अगर मैंने इस लिस्ट में से कोई ऐसा फॉन्ट यूज किया जो मेरे पीसी में नहीं है ना, तो बच्चों वो सपोर्ट नहीं करेगा, वो शो नहीं करेगा उस फॉर्मेट में। ठीक है, जैसे कोई ऐसा स्टाइल जो अलग सा हो, जैसे मान लेते ये है रॉकवेल इस एक्स्ट्रा बोल्ड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहां से बस नाम कॉपी करना है आपने, कॉपी, और यहां पे जाके पेस्ट करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं वेब पेज पे हमारे क्या आता है। तो अभी भी ये जैसे पहले फॉन्ट आ रहा था वैसे ही आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये फॉन्ट मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक सपोर्टेड फॉन्ट दिखाता हूं जो मेरे सिस्टम पर सपोर्ट करेगा। इट्स इम्पैक्ट, मैं इम्पैक्ट कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि बच्चों के ये वाला फॉन्ट तो सपोर्ट कर नहीं रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमा लगा के दूसरा डाल सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि अगर ये मान लेते हैं एक वेबसाइट हमने बनाई और ये वेबसाइट मल्टीपल लोग खोलेंगे, अलग अलग पीसीज पे खुलेगी, तो हो सकता है कि किसी के में ये वाला फॉन्ट हो, तो ये वेबसाइट किस फॉन्ट पे, इसी फॉन्ट को दिखाएगी। अगर ये फॉन्ट नहीं है तो किस पे चली जाएगी ऑटोमेटिकली, सेकंड फॉन्ट पे। और सर ये भी फॉन्ट नहीं है तो जो हमने कोई थर्ड फॉन्ट डिफाइन रखा होगा तो उस पर चली जाएगी। वो भी फॉन्ट नहीं है तो जो डिफॉल्ट फॉन्ट होगा उस पर शो कर देगी। ठीक है, तो देखिए अभी हम वेब पेज को देखते हैं, ये फॉन्ट मेरे में है, देखो कंटेंट चेंज हो गया। क्लियर, ठीक है, सो वी कैन डिफाइन मल्टीपल फॉन्ट नेम बाय सेपरेटिंग कॉमा। इज इट क्लियर और नॉट, राइट। बट उसके लिए सेकंड फॉन्ट तभी काम करेगा जब फर्स्ट फॉन्ट हमारा काम नहीं कर रहा होगा, थर्ड फॉन्ट पे तभी जाएगा जब हमारा सेकंड और फर्स्ट काम नहीं करेंगे। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट वी हैव, ये दोनों हटा देता हूं मैं। नेक्स्ट वी हैव फॉन्ट
फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, तो बच्चों फॉन्ट स्टाइल में हम क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को इटैलिक कर सकते हैं। ऑब्लिक्यू और इटैलिक ये दोनों सेम ही चीज होती है, हालांकि आपको एक टैग भी पता है इस नाम का, है ना। तो टैग क्या होगा कि सब हमारे पास हमें हेडिंग भी करना है, हमें ये भी करना है, मल्टीपल चीजें करनी है, तो वहां पे बार बार आई टैग स्टार्ट करो बंद करो, आई टैग स्टार्ट करो बंद करो, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन मुझे क्या करना है सर, पूरे पेज पे जो भी कंटेंट है सबको इटैलिक कर दो। तो मैंने क्या किया, बॉडी और यहां पे बस लिखा फॉन्ट स्टाइल और इटैलिक कर दिया, बस खत्म। मेरा कंटेंट सब कैसा हो जाएगा, खत्म। ना फॉन्ट ना टैग आई स्टार्ट करना है, ना बंद करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट स्टार्ट लाइक दैट। क्लियर, कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो फॉन्ट स्टाइल में एक ही प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, ओनली इटैलिक। ऑब्लिक्यू भी करेंगे बच्चों, इट इज सिमिलर एग्जैक्टली सिमिलर। ठीक है, तो देखिए सेम ही आ रहा है, कुछ चेंज नहीं है, बस दो प्रॉपर्टी हम लोग इटैलिक के लिए लगा सकते हैं, तो इटैलिक या फिर ऑब्लिक्यू। इटैलिक आप ज्यादा याद रखिए, क्योंकि ये जैसा नाम है वैसा आपने सुना भी हुआ है पहले से, इटैलिक आपको याद रहेगा। क्लियर है? ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, है ना। आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।